Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We will be revising the complete concept of the chapter along with MCQs, right? Topic for this lecture is periodic classification of elements. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly, right? So in the previous lecture on the same chapter, you have learnt about periodic table. What is the meaning of periodic table? How many groups, how many periods are there in it? And on what basis two elements are kept into the same group? That means the properties are repeated after regular intervals. That is called as periodic properties. But why properties are repeated? Why the properties shown by sodium are same as that of potassium? Because the valence shell electronic configuration is same for them. So they are kept into the same group. All that we have taken up in the previous lecture. Now in this lecture, the main discussion is on the periodic trends of properties like atomic size, ionic size and ionization energy, electron gain enthalpy, electronegativity also. What is the meaning of ionization energy? How does it vary in a group or in a period? What are the factors on which ionization energy depends? What is the difference between electron gain enthalpy and electronegativity? And apart from that, under atomic radius, we will be taking up covalent radius and van der Waals radius also. For which element covalent radius is measured, for which element van der Waals radius is measured. All that we have to revise now through these questions. So let's start with our work. Question number 1. The first question on the screen. Among the first question is atomic radii of fluorine and neon in angstrom units are. You have to tell atomic radius. दो एलिमेंट दिए, एक फ्लोरीन और एक नियोन. ऑप्शंस आर 1.60 एंड 1.60. ए ऑप्शन में तो दोनों को सेम दिया है और एंगस्ट्रॉन में वैल्यू है. बी ऑप्शन में 0.72 एंड 1.60. सी के अंदर फिर से दोनों को सेम दिया है और डी ऑप्शन है नन ऑफ देम. सो कैसे देखेंगे ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे अरेंज्ड है? पहले ये देखो, पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजेंस हैं फ्लोरीन और नियोन दोनों के दोनों पी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है. नियोन इज ए नोबल गैस, फ्लोरीन इज ए हैलोजन. बोथ ऑफ देम आर इन पी ब्लॉक एंड दिस इज द ग्रुप 17th and neon belongs to 18th group, right? And when we move from left to right, what happens to size? Can I say atomic size or atomic radius decreases from left to right in a period? Decreases from left to right in a period. Radius decrease होता है. तो नियोन तो राइट हैंड साइड पे है, फ्लोरीन लेफ्ट पे है, तो नियोन का रेडियस कम होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जितना आप लेफ्ट से चलोगे और राइट पे आओगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से साइज के अंदर हमें क्या दिखता है कि साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. बट कीप इन माइंड, फ्लोरीन के लिए कोवलेंट रेडियस मेजर किया जाएगा. फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और नियोन तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, नोबल गैसेस कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती. सो उनके लिए आप van der Waals रेडियस मेजर करते हो. van der Waals रेडियस इज मेजर्ड फॉर नियोन. दैट इज व्हाई नियोन का साइज बड़ा होगा. नियोन का एटॉमिक रेडियस आएगा 1.60 एंगस्ट्रॉन जबकि फ्लोरीन का आएगा 0.72. तो आपका आंसर है ऑप्शन बी. ये बात याद रखनी है, van der Waals रेडियस इज ऑलवेज बिगर देन द एटॉमिक रेडियस. तो कोवलेंट रेडियस स्मॉलर होता है. कोवलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस इज स्मॉलर देन द van der Waals रेडियस. गॉट इट? तो ये बात क्लियर होनी चाहिए. van der Waals रेडियस कैसे देखा जाता है? दो एटम्स, जैसे कि हमने नियोन के लिए दो नेबरिंग एटम्स को आपने कंसिडर करना है, उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेना है और फिर उसको हाफ कर देंगे. हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज दी van der Waals रेडियस. जबकि कोवलेंट रेडियस में तो आपको खुद से दिख जाएगा कि
कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के बीच में, दो फ्लोरीन एटम्स हैं, उन्होंने F2 बनाया और ये है दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस विच इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैंने d लिखा, तो कोवलेंट रेडियस विल बी हाफ ऑफ d, राइट। सो कोवलेंट रेडियस इज स्मॉलर, डायग्राम से भी दिख रहा होना चाहिए, कोवलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन वंडरवॉल्स रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस किस किस के लिए हम मेजर करते हैं? नोबल गैसेस के लिए, हीलियम, नियोन, आर्गोन। तो आपके पास आंसर बनेगा बिगर वैल्यू फॉर नियोन एंड स्मॉलर वैल्यू फॉर फ्लोरीन। सो आपका आंसर है ऑप्शन बी, राइट। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। So question number 2 is Na plus is smaller than sodium atom because Na plus छोटा क्यों होता है? Cation always smaller than atom होता है, but reason options है nucleus in each case contains different nucleons. Sodium atom has an electron lesser than sodium ion. Sodium atom has 11 electrons and sodium ion has 10 electrons, and force of attraction is less in Na plus than in sodium. तो देखिए सोडियम का ये सिचुएशन है, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, राइट। जब हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाते हैं तो Na प्लस बनता है, Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है तो पूरा शेल खत्म हो गया, थर्ड शेल हैज बीन रिमूव्ड आउट नाउ, 3s1 नहीं है अब। तो पहले Na के अंदर 3 शेल्स आ रहे थे, Na प्लस के अंदर 2 ही शेल्स आ रहे हैं। Na प्लस हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ट्रू, वेयर एज सोडियम एटम वाज हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका आंसर ये बनेगा ऑप्शन सी, सोडियम एटम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड Na प्लस हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, that is why Na plus is smaller. So we can make a general statement, cations are always smaller than the corresponding atoms. They are always smaller than the corresponding atoms. अपने अपने एटम से कैटायन हमेशा छोटा होता है क्योंकि कैटायन के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, रिमूव होने से आपने देखा पूरा शेल भी खत्म हो जाता है कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि Na प्लस में आप देख रहे हो, राइट। ऐसा कुछ नहीं है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इन Na प्लस, दैट इज नॉट द रीजन, रादर न्यूक्लियस के अंदर यहाँ Na प्लस में प्रोटॉन्स कितने हैं 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। यहाँ सोडियम एटम में तो प्रोटॉन भी 11 थे और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 थे, राइट। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लिखते हैं Z अपॉन E से। तो Z अपॉन E इज 11 upon 11 for sodium atom and for Na plus Z upon E क्या है? Z means number of protons. Protons तो 11 है, electrons 10 है. So can I say it is 1.1 whereas वो तो 1 था. So Na plus के अंदर effective nuclear charge ज़्यादा है तो size इसका छोटा हो जाता है क्योंकि इसके electrons अब कम हो गए, 10 electrons. Got it? तो इस तरीके से आपको explain करना है. Let's move to the next now. अगला क्वेश्चन फिर से साइज के ऊपर है. यू आर गिवन सम आयन्स O नेगेटिव एंड देन पहले दिया है O2 नेगेटिव, देन यू आर गिवन F नेगेटिव एंड देन Na प्लस Mg+2 Al+3. ऑल ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है. देयर आयोनिक रेडियाई शो एन इंक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव टू F नेगेटिव और डिक्रीज. फिर बी ऑप्शन में पहले डिक्रीज लिखा है, बाद में इंक्रीज लिखा है. सी के अंदर क्या है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज. एंड डी के अंदर है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव टू Al3+. राइट. सो O2 नेगेटिव से शुरू करते हैं. क्या क्या हमें आयंस दिए हैं पहले लिखते हैं. वी आर गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल O2 नेगेटिव, देन यू आर गिवन F नेगेटिव, फिर दिया है नियोन, नियोन नहीं दिया, Na प्लस दिया, Mg+2 एंड Al+3. आप क्वेश्चन से चेक कर लो, ये सारे आयंस दिए 1 2 3 4 5. राइट, ये 5 के 5 मैंने लिख दिए. हमें क्या बताना है? आयोनिक रेडियाई कैसे वेरी करेगा. सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेक करते हैं. इस फर्स्ट वाले में 10, सेकंड में भी 10,
ये 11 माइनस 1 दिस इज 10, 12 माइनस 2 दिस इज 10, 13 माइनस 3, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, तभी हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज कैसे चेंज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लेंगे, Z अपॉन ई। Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर 10। F नेगेटिव में प्रोटॉन्स आर 9, इलेक्ट्रॉन्स आर 10। यहाँ 11 अपॉन 10, सबके इलेक्ट्रॉन्स तो 10 है, 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10। गॉट इट। तो ये हो रहा है 0.8, ये 0.9, 1.1, 1.2, 1.3। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस is inversely proportional to the effective nuclear charge. Can I say effective nuclear charge is increasing from oxide to Al plus 3? जब effective nuclear charge बढ़ेगा तो obviously फिर size कम हो जाएगा, तो डिक्रीज दिखेगा, significant decrease will be observed from first member to the last member। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। काफी बार ये क्वेश्चन आता है इवन इन योर एंट्रेंस एग्जाम एंड इन बोर्ड एग्जाम। जब जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिए हों, आपको साइज जब बताना है तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखोगे, जिसको Z अपॉन ई बोला जाता है। Z अपॉन ई अगर हाई है मतलब न्यूक्लियस जो है वो टाइटली कंट्रोल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज कम हो जाता है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following groups represents a collection of isoelectronic species? Isoelectronic कौन कौन है? Options are N3 negative and then F negative, Na plus and calcium plus 2, फिर cesium, फिर bromine and these are the various atoms। अब चेक करते हैं A ऑप्शन को, N3 negative, F negative and Na plus। ये है 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के, 3 हाइड्रोजन, 10। दूसरा है F नेगेटिव, 9 + 1 10। F नेगेटिव को फ्लोराइड आयन कहते हैं। Na प्लस में 11 - 1 is 10। राइट, ए ऑप्शन में तो सबके इलेक्ट्रॉन सेम आ गए। बी ऑप्शन इज कैल्शियम प्लस 2, फिर सीजियम प्लस 1 और फिर ब्रोमीन। तो ये है कैल्शियम 20 - 2 कर देंगे, +2 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। और सीजियम होता है 55, 1 + 1 है तो 1 यूनिट चार्ज विल बी रिमूव्ड। ब्रोमीन हैज एटॉमिक नंबर एज 35, तो इलेक्ट्रॉन उसके 35। राइट, अब आता है सी ऑप्शन। सी के अंदर ये तो अनइक्वल आ गए ना। सी में देखो बेरिलियम Al+3 एंड क्लोरीन। यू आर गिवन बेरिलियम फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें एटॉमिक नंबर उसका 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम इज 13, 3 मैंने रिमूव कर दिया, 10 हो गया। क्लोरीन इज 17। गॉट इट। फिर आता है जी Na+, कैल्शियम +2 एंड Mg+2। Na+, कैल्शियम +2 एंड Mgp+2 ये हमें दिए हुए हैं। सोडियम हैज 11 -1 किया पॉजिटिव चार्ज की वजह से। कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स है, -2 किया 18 हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, आई हैव रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन, सो ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल। किसी में 10 आ रहा है, किसी में 18 आ रहा है, फिर यहाँ 10 आ रहा है, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये है जिसमें सबका ही 10 आ रहा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर written in option A. Isoelectronic means they should have same number of electrons। आपको हर किसी के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे। Got it? Let's move to the next question number 5. Fifth question is the element with highest ionization potential is। You have been given some atoms which belong to the second period of the पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड बोरॉन दिए, हम इनको पहले अरेंज करेंगे पीरियोडिक टेबल में। बोरॉन जो है वो पी ब्लॉक के अंदर 13th ग्रुप है। कार्बन बिलोंग्स टू 14th ग्रुप, 15th ग्रुप इज नाइट्रोजन एंड 16th ग्रुप इज ऑक्सीजन। राइट, ये उनका पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन है। सो हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हाट हैपन्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड।
याद रखना है, जब भी ग्रुप में मूव करोगे ऊपर से नीचे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि नीचे आने से साइज बड़ा होता है। उसके ऑपोजिट जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है तो हाईएस्ट तो ऑक्सीजन की होनी चाहिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, बट आपका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2s2 2p3 whereas oxygen is 2s2 2p4. Can I say this is half filled configuration? हाफ फिल्ड है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल नाइट्रोजन। हाफ फिल्ड की वजह से इसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज हाईएस्ट फॉर इट, देयरफॉर आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन हैज द हाईएस्ट वैल्यू। ये आपके पास 15th ग्रुप का मेंबर था जिसमें 2p3 होता है, या अगर फॉस्फोरस आएगा तो 3p3 होगा। अकॉर्डिंगली आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में हाई रहेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 6। वी आर गिवन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। दे आर इन द ऑर्डर। 4 एलिमेंट्स दिए, तो ये भी हमारे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में 3rd पीरियड के एलिमेंट हैं। 3rd पीरियड स्टार्ट ही सोडियम से होता है, फिर आगे आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। तो रेगुलर सीक्वेंस में हमें दिए गए हैं। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सोडियम के लिए 3s1, मैग्नीशियम इज 3s2, एल्यूमिनियम है 3s2 3p1, सिलिकॉन है 3s2 3p2। ये सबके कॉन्फ़िगरेशंस हमने लिख लिए। अब देखने की बात यह है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इट इंक्रीजेस इन अ पीरियड। पीरियड में मूव करते हैं तो ये इंक्रीज होती है, तो फिर सोडियम की कम और मैग्नीशियम की ज्यादा, ये तो आएगा ही। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोडियम हैज लेस देन मैग्नीशियम, बट मैग्नीशियम इज नॉट हैविंग लेस देन एल्यूमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन 2s में से निकलना है और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है? 3p में से। सो इफ आई सी द पेनिट्रेशन इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड करने के लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। आई मीन टू से इट डिपेंड्स अपॉन साइज, इट डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो s orbitals are more penetrated towards the nucleus than p, than d and than f. It is very difficult to remove an electron from an s orbital. Difficult to remove electron from s orbital because s orbital के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस ने उसको टाइटली होल्ड कर रखा होता है। ठीक है, तो s में से इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं निकलेगा, 3p से जल्दी निकलेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम हैज लेस देन मैग्नीशियम, बट मैग्नीशियम इज नॉट हैविंग लेस देन एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ऊपर है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर जो आपके पास आ रहा है एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम विल हैव लेस देन सिलिकॉन। एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से कम क्यों है? क्योंकि जब हम सिलिकॉन पे आते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियस के अंदर पहले एल्यूमिनियम के पास थे 13 प्रोटॉन, सिलिकॉन के पास है 14 प्रोटॉन, सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर सिलिकॉन हैज मोर देन एल्यूमिनियम। राइट, रेगुलर ट्रेंड नहीं आया। रेगुलर अगर आता फिर तो ये आंसर आना था सोडियम हैज लेस देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लेस देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लेस देन सिलिकॉन। ऐसा नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है, एक जगह पे रिवर्सल आ रहा है। मैग्नीशियम हैज मोर देन एल्यूमिनियम बिकॉज मैग्नीशियम होता है 2s2, 2s2 मीन्स इलेक्ट्रॉन s में से निकलना है, और यहाँ सॉरी 2s2 नहीं 3s2 लिखना था, इट इज 3s2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3p से निकलना है एल्यूमिनियम में। गॉट इट? तो आंसर आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस में यहाँ तो बिल्कुल ही ऑपोजिट दे दिया। ए, बी ऑप्शन में तो दिया है कि सोडियम हैज हाईएस्ट, जो कि गलत है। सी के अंदर, डी के अंदर भी रेगुलर ट्रेंड नहीं दिया है। यहाँ दिया गया है कि मैग्नीशियम हैज लेस देन एल्यूमिनियम, तो सी भी रॉन्ग है। डी तो ऑल टुगेदर रॉन्ग है, डी में हाईएस्ट सोडियम का दिया है।
Got it? Moving to the next question number 7. The set representing the correct order of first ionization energy. अलग अलग एलिमेंट्स दिए पीरियोडिक टेबल में से, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, दैट इज रॉन्ग. अल्कली मेटल्स हो या कोई भी ग्रुप हो, डाउनवर्ड्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स. जब आप टॉप से बॉटम आते हो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. मतलब कि फिर सोडियम का और पोटेशियम का अगर देखेंगे तो पोटेशियम विल हैव लेस देन सोडियम, सोडियम विल हैव लेस देन लिथियम. ए ऑप्शन तो गलत. बी ऑप्शन में हमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिए हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अगर हम पोजीशन देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये है ना. तो कैन आई से द ट्रेंड इज करेक्ट फॉर बी ऑप्शन. बेरिलियम हैज बेरिलियम हैज मोर. Downward ionization energy decreases means beryllium will have greater than magnesium, magnesium has more than calcium. क्यों? क्योंकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, मैग्नीशियम का 3s2, कैल्शियम का 4s2. तो 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है या 2s से निकालना है, आप समझ सकते हो. 2s is more closer to the nucleus, so loss of electron is difficult. Hence ionization energy is high for beryllium. अगर आते हैं हम सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हमें दिया है बोरॉन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन. ये गलत है क्योंकि कार्बन का नाइट्रोजन से ऊपर नहीं हो सकता, नाइट्रोजन का ऊपर आएगा. नाइट्रोजन इज 2p3, कार्बन इज 2p2. 2p3 मतलब हाफ फिल्ड. हाफ फिल्ड इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट. तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा होती है. तो हमारा सी ऑप्शन का जो ट्रेंड है वो तो रॉन्ग था. डी को देखते हैं. जर्मेनियम ग्रेटर देन सिलिकॉन देन कार्बन, हमें ये दिया है डी ऑप्शन में. जर्मेनियम हैज मोर देन सिलिकॉन विच हैज मोर देन कार्बन. पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम. डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बट germanium has more than silicon. जर्मेनियम का कम होना चाहिए था बट ज्यादा है. क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का वैलेंस शेल, पहले कार्बन का वैलेंस शेल देखो 2p2, सिलिकॉन का 3p2, इसका है 4p2. 4p2 आ गया मतलब अंदर 3d है. 3d हैज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. सो 4p कहने को तो न्यूक्लियस से दूर है बट 4p का इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली हेल्ड है बाय द न्यूक्लियस ऑफ जर्मेनियम बिकॉज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d इज कमिंग इन बिटवीन, राइट. 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को ठीक से रोकते नहीं है, स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए 4p का इलेक्ट्रॉन का लॉस डिफिकल्ट हो जाता है. तो जर्मेनियम का ज्यादा होता है सिलिकॉन से एंड you are given germanium greater than silicon greater than carbon. तो आपका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन में वो बनेगा ऑप्शन बी. बेरिलियम हैज मोर देन मैग्नीशियम मोर देन कैल्शियम. गॉट इट? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, राइट. बाकी सब गलत है, हमें करेक्ट ऑर्डर निकालना था. और डी ऑप्शन में तो हाईएस्ट कार्बन की आनी चाहिए थी. जर्मेनियम की हाई दिया है, जर्मेनियम का सिलिकॉन से ऊपर है बट हाईएस्ट कार्बन का होता है. डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. ग्रुप 14 में रेगुलर ट्रेंड नहीं आएगा क्योंकि जर्मेनियम के अंदर 3d आ रहा है. बट इट इज ट्रू दैट जर्मेनियम हैज मोर देन सिलिकॉन बट हाईएस्ट शुड बी ऑफ कार्बन, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ 4 consecutive elements in the second period of periodic table are given. आपको कुछ आयोनाइजेशन एनर्जीज के वैल्यूज गिवन है. 8.3, 11.3, 14.5, 13.6. Which of the following is the ionization energy of nitrogen? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का कौन सा है? तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कुछ 4 एलिमेंट्स के दिए.
ये सब वैल्यूज हैं 8.3, 11.3। तो कैन आई से सेकेंड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हो पर नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन इज 2p3। 2p3 क्या होता है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। p3 is half filled, p6 is fully filled. Half filled and fully filled are extraordinary stable. Therefore जो भी highest value है चारों में से highest value है 14.5, that will be for nitrogen. So nitrogen is having high value of ionization energy. Got it? Due to half filled configuration. तो ये 14.5 बिगेस्ट वैल्यू है, तो ये आपका आंसर है नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजिली आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2p2 बन जाएगा, उससे क्या होगा? उससे जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9। अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी आयोनिक रेडियाई डिक्रीज एज। देखो क्या क्या दिया है, K+, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड कैल्शियम+2। आयोनिक रेडियस कैसे कैसे वेरी होता है, हम सबके इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं पहले। These 4 ions are given to you. उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं 19 - 1 is 18 फॉर पोटेशियम। सल्फाइड में 16 + 2 is 18। ये है 17 क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के 20, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस किए पॉजिटिव चार्ज की वजह से। सो ऑल ऑफ देम आर हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज, पहले Z/E देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन्स आर 19 इन पोटेशियम, इलेक्ट्रॉन्स आर 18। ये है प्रोटॉन्स 16 सल्फर के अंदर, 16 प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन 18। क्लोराइड में 18 और 18, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर 18, राइट। तो ये सिचुएशन है। सॉरी, ये हमने गलत नहीं लिख दिया, क्लोराइड में 17 लिखना था ना, 17 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सारे ठीक है। तो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है? न्यूक्लियर चार्ज इज हाईएस्ट इन विच केस? इट इज कैल्शियम+2। ठीक है, तो Z वैल्यू इसमें हाईएस्ट आ गई। 20/18 करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा। कैन आई से Z वैल्यू इज लोएस्ट हेयर, 16/18। न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो स्मॉलर नंबर आएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है रेडियस के साथ कैसे वेरी करता है? एटॉमिक रेडियाई कैन आई से इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज है कैल्शियम+2 का, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ऑफ कैल्शियम+2 विल बी स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा साइज बनेगा S2 नेगेटिव का। जितना नेगेटिव चार्ज बड़ा होता है उतना साइज बड़ा हो जाता है। और फिर क्लोराइड, फिर आएगा K पॉजिटिव और फिर आएगा कैल्शियम+2, राइट। सल्फाइड हैज गॉट दी biggest size and calcium+2 has the smallest size, right। अब ऑप्शंस को देखो, आपके पास ए ऑप्शन में दिया है कि कैल्शियम इज बिगेस्ट, बी में क्लोराइड को बिगर दिया है, सी आपका आंसर बनेगा सल्फाइड, देन क्लोराइड, देन K पॉजिटिव, देन कैल्शियम+2। हायर इज द नेगेटिव चार्ज, देन यू हैव बिगेस्ट विल बी द साइज, राइट। एटॉमिक साइज किस तरह वेरी करता है? न्यूक्लियर चार्ज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना चार्ज हाई होगा उतना एटम का साइज छोटा हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? इट इज द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ये। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added into the isolated atom, when an electron is added into the isolated atom। जैसे कि कोई एटम X है एंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड, ये X नेगेटिव बनेगा। तो ये पहले से ही गैसियस स्टेट में है, पर पहले एटम था, अब ये आयन बना। तो ये जो भी एनर्जी निकलेगी उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। न्यूक्लियस अगर अट्रैक्शन देता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, तभी इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है, तभी एनर्जी रिलीज होती है।
राइट। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल होता है क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी will, how does it vary in a period? It will increase in a period. It increases in a period. ठीक है, तो डिक्रीज होती है ये ग्रुप में, पीरियड में इंक्रीज होती है, क्योंकि जब पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन अ पीरियड। कहने का मतलब जब आप पीरियड में मूव करोगे, न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ठीक से अट्रैक्शन देता है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जल्दी से आता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल इज फॉर क्लोरीन। हेलोजेंस की हाई होती है, पर हेलोजेंस में से भी क्लोरीन की हाईएस्ट है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल, highest electron affinity in the periodic table is of chlorine। तो अब आप ऑप्शंस देखो, हाईएस्ट क्लोरीन की है, और फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एल्यूमिनियम। किस तरह से, ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस इन ए पीरियड, और ग्रुप में ऑपोजिट हो जाएगा, वो भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस while moving in a group, while moving in a group it will decrease। तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो ये कम होती है। अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना पड़ेगा पहले। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ये दिए हुए हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे है एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे है क्लोरीन। ये पोजीशंस है, मतलब ये मैंने पीरियोडिक टेबल का 13th ग्रुप लिखा है, ये 15th लिखा है, ये 16th और ये 17th। और साथ में हमने ये देखना है, ये सेकेंड पीरियड है एंड दिस इज द थर्ड पीरियड। यू आर एबल टू सी सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जब आप नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करोगे, 30 मेटल है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी सब नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आपको नॉन मेटल दिए हैं, एल्यूमिनियम मेटल दिया है। मेटल तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती, इलेक्ट्रॉन गेन किसने करना है, नॉन मेटल ने। तो क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद नाइट्रोजन 2p3 होता है, 2p3 इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड वाला तो ना लूज करता है ना गेन करता है, वो तो पहले से ही स्टेबल है। तो नाइट्रोजन का कम है, ऑक्सीजन का हाई है। ऑक्सीजन के ऊपर भी क्लोरीन, बट मेटल जो है एल्यूमिनियम वो लीस्ट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट। तो कोई भी एलिमेंट्स दिए हों, पहले उनकी पोजीशन देखो पीरियोडिक टेबल में वो कैसे अरेंज्ड है। इस तरह से आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि ये उनका अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में। एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद ये ट्रेंड्स याद होने चाहिए। जब जब आप ग्रुप में मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, जब आप पीरियड में मूव करोगे ये इंक्रीज करेगी। अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशंस को साथ में देखना है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम के साइज पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, या आप कह सकते हो जीरो होती है। दे डोंट गेन इलेक्ट्रॉन इजिली। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। What is true about the electronegativity order of the following elements? आपको दिए हैं फॉस्फोरस, ए ऑप्शन में दिया है फॉस्फोरस हैज ग्रेटर देन सिलिकॉन। फिर दिया है कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, कार्बन ग्रेटर देन ब्रोमीन, स्ट्रोंशियम ग्रेटर देन कैल्शियम। चेक करते हैं सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस कहाँ कहाँ पे है। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विल हेल्प यू टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स। ये हमारा सिचुएशन है 14th ग्रुप में कार्बन और 15th में नाइट्रोजन, और आपको दिए हैं क्वेश्चन के अंदर सिलिकॉन एंड फास्फोरस। कैन आई से 15th ग्रुप का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल ये होता है काई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ phosphorus is more than silicon. Electronegativity decreases from top to bottom. ये बात याद रखनी है। Electronegativity decreases from top to bottom in a group.
जितना नीचे आते हैं तो ये कम होती है, हाईएस्ट फ्लोरीन है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में कैसे वेरी करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये हमारे पास ट्रेंड्स होते हैं। उसके बाद आप देखो फास्फोरस का हाई आ गया, क्योंकि यहां सिलिकॉन और फास्फोरस का कंपैरिजन है। आप जा रहे हो पीरियड में मूव करने से ये बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है पीरियड में मूव करने से। कार्बन हैज मोर देन नाइट्रोजन, ये गलत है। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन को हमने लिख भी रखा है। नाइट्रोजन 15th ग्रुप का है, नाइट्रोजन इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है तो उसका हाई आएगा, कार्बन का कम आएगा। कार्बन हैज ग्रेटर देन बोरॉन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हेलोजन्स आर having, we can mention halogens have highest electronegativities. Halogens have highest electronegativity in their respective period. अपने अपने पीरियड में हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है। तो कार्बन का ग्रेटर देन ब्रोमीन गलत है। पॉलिंग स्केल पे भी अगर देखो तो कार्बन की वैल्यू है 2.5, ब्रोमीन की वैल्यू है ऑलमोस्ट 2.96। स्ट्रॉन्शियम एज ग्रेटर देन कैल्शियम, ये हम चेक कर लेते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो स्ट्रॉन्शियम की कम होनी चाहिए, यहां तो ग्रेटर देन दिया है। सो आपको करेक्ट आंसर देखना है ना। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, फॉस्फोरस हैज ग्रेटर देन सिलिकॉन। बाकी सारे गलत दिए हुए हैं। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आंसर देना है तो ये याद रखिए कि ये न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड पेयर, राइट। एक बॉन्ड बना है, जैसे कि ये ए और बी के अंदर बॉन्ड बना है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आ जाएंगे। अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, मतलब पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, राइट। Coming to the next question, number 12. First ionization energy of oxygen is less than that of nitrogen. What is the correct reason for this observation? Ionization energy हमने देखा ही है कि पीरियड में इंक्रीज होती है, पर ऑक्सीजन की कम है नाइट्रोजन से। क्यों कम है? क्योंकि ये हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड का मतलब ये 2p3 है, जबकि ये 2p4 है। अब हम ऑप्शंस को रीड करेंगे। Lesser effective nuclear charge of oxygen than nitrogen, lesser atomic size of oxygen, atomic size of oxygen is less than nitrogen, वो ठीक है, बट ये रीजन नहीं है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने के लिए। Greater inter electron repulsion between two electrons in the same p orbital counterbalances the increase in nuclear charge on moving from nitrogen to oxygen. देखिए ये 2p4 है ना, जो 2p4 का ये अरेंजमेंट होता है, x में 2, y में 1 और z में 1। तो यहां इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगा, तो वही सी ऑप्शन में लिख रखा है। ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम p ऑर्बिटल, इट विल काउंटर बैलेंस द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। तो इस वजह से इसका जो ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो कम हो जाता है। 2p3 स्टेबल है, 2p4 तो स्टेबल नहीं है। 2p4 के अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, तो वो उसको बैलेंस कर देती है जितना इंक्रीज हुआ न्यूक्लियर चार्ज में। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हुआ, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन थे, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन थे। 8 प्रोटॉन वाले का तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, बट हाई नहीं होती है, कम होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया ना, उसने इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। You are given column A and column B. Correct match of contents in column 1 with column 2 is. The options are helium, chlorine, calcium and lithium. ये A कॉलम में दिया है, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इनके साथ आपको मैच करना है। कैन आई से हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी फॉर हीलियम। नोबल गैसेस विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो हीलियम विल नॉट लूज इजिली, और आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का है।
हैलोजेंस का हाईएस्ट होता है और हैलोजेंस में से टॉप पे क्लोरीन। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड कैल्शियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आपने ये याद रखना है कि अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एक अल्कली मेटल और दूसरा क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर वेरी गुड elements to lose electron, so they lose electron very easily, that is why they are called as electropositive elements। D ब्लॉक की मेटल उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होती हैं जितनी S ब्लॉक की हैं, और S ब्लॉक में अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो हमने कैल्शियम को तो चूज कर लिया है फॉर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इन चारों में से कैल्शियम जो है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कहने का मतलब ये C जो है 2 पे मैच हो रहा है। सी को 2 पे मैच करने के लिए तो ए ऑप्शन में भी दे रखा है, बी में भी दे रखा है, तो बी केयरफुल, अभी हमारा आंसर फाइनल नहीं हुआ कौन सा आंसर आता है, बट हीलियम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ए विल बी मैचिंग विद 4, एंड क्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे मैच करेगा, एंड लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात बहुत जरूरी है, लिथियम इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग नेचर देखने के लिए हमें यह देखना होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले भी उसको सबलाइम किया जाता है। लिथियम को एनर्जी देंगे विच इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी, वो देने से ये पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही यही होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेट ऑफ द एटम, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद ये जो लिथियम गैसियस स्टेट में है ये वाटर से कंबाइन करता है, इसको हाइड्रेट किया जाता है, Li+ एक्वस बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एनर्जी। तीनों का रिजल्टेंट लेते हैं, अगर मैं इन 3 रिएक्शंस को ऐड कर दूं 1, 2 and 3, if all of them are added, तो ये रिएक्शन बन जाएगा लिथियम सॉलिड प्लस वाटर चेंजिंग टू Li+ एक्वस एंड इलेक्ट्रॉन, और पहले सैंपल सॉलिड था, बाद में ये एक्वस सोल्यूशन में आ गया, ये है रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग नेचर को इंडिकेट कर रहा है ये रिएक्शन। तो लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू हाई होता है। हाइड्रेशन एनर्जी कब हाई होती है, जब आयन का साइज छोटा होता है, तो Li इज स्मॉल इन साइज, इसलिए वो हाइड्रेट जल्दी से हो जाएगा, एंड यू विल हैव द बेस्ट वैल्यू फॉर रेड्यूसिंग नेचर एज लिथियम, मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा। लिथियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। गॉट इट। तो हमने मैच कर दिया ए को 4 के साथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बी को मैच किया 1 पे, सी को आपने कैल्शियम को मैच किया है 2 के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी। Right, let's come to the next question now. Let's come to the next now, question number 15th. Which of the following transitions involves maximum energy? क्या क्या ऑप्शन है, मैक्सिमम एनर्जी कब देनी पड़ेगी आपको, m-1 से m बन रहा है, बी ऑप्शन में m+2 से m+3 बन रहा है, फिर 1 से 2 बन रहा है, फिर 0 से 1 बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट केस में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, सब जगह लॉस एक ही इलेक्ट्रॉन का है। मैक्सिमम एनर्जी कब आपको देनी पड़ेगी, इन विच ट्रांजिशन? तो देखिए हायर इज द चार्ज, हायर इज द चार्ज ऑन मेटल M या ऑन M आयन, मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स, more difficult becomes the loss of electron, उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस डिफिकल्ट हो जाता है। तो m+2 से m+3 जो है ये ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज हाई हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली, देयरफॉर +2 से +3 का जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल रिक्वायर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या लिखा है हमने, हायर इज द चार्ज ऑन द मेटल आयन, मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर मैक्सिमम विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। आपको दिए हैं कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, क्लोराइड एंड सल्फाइड, साइज पे कमेंट करना है।
सब के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले तो ये देखो, ये आपको दिए, इनके हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो ये 40 माइनस 2 इज 18, ये 19 माइनस 1 इज 18, आर्गन में तो होता ही 18 है। 17 प्लस 1 ये 16 प्लस 2, सबके इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख दिए, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या चीज देखी थी हमने कि नेगेटिव चार्ज हाई होगा तो साइज बड़ा होगा। एटॉमिक रेडियस, और आई कैन से बेटर है आयोनिक रेडियस लिख देते हैं। आयोनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज हाई किसके ऊपर है चेक करेंगे। कैल्शियम +2 के लिए Z/E कितना बनेगा 20/18, K+ के लिए 19/18 और आर्गन के लिए 18/18, क्लोराइड हैज 17/18 एंड सल्फाइड हैज 16/18। तो बिगेस्ट वैल्यू हाई जो न्यूक्लियर चार्ज की है वो कैल्शियम की आएगी। यहाँ पे जो Z/E है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, यहाँ भी ग्रेटर देन 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ लेस देन 1 आएगा, यहाँ मोर लेस देन 1 आएगा। गॉट इट। तो उसके लिए आपने ज्यादा चार्ज किसके ऊपर देख लिया है, कैल्शियम +2, मीन्स जितना हाई चार्ज उतना साइज कम। सो कैल्शियम +2 विल बी स्मॉलर। कैल्शियम के बाद आना चाहिए पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आर्गन, 1 सेकेंड, कैल्शियम के बाद पोटेशियम, फिर आर्गन, उसके बाद आना चाहिए क्लोराइड और फिर सल्फाइड। सल्फाइड इज बिगेस्ट इन साइज। तो इस तरीके से साइज के ऊपर और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर काफी ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बनता है ऑप्शन ए। डी ऑप्शन भी थोड़ा सा ही फर्क है ए से। डी में देखो सल्फाइड पहले दे दिया तो वो गलत है, आपका आंसर करेक्ट आंसर ए बनेगा, सल्फाइड सबसे बड़ा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 17। With which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy? सबसे कम ionization enthalpy किसका है? It is difficult to remove electron from second orbit as compared to third orbit. B ऑप्शन में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन is to be removed from third shell. It is to be removed from third orbit. Therefore 3s1 का जो लॉस है वो इजी होगा। आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये जो एटम है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन हम लूज कर दें तो ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रही है, इट मीन्स यहां पे सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। आंसर है ऑप्शन बी, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th। There is an element X. It belongs to 4th period and 15th group of the periodic table. With which one of the following is true regarding the outer configuration? एटम X है और कहाँ पे प्रेजेंट है periodic table में, 4th period and it is present in 15th group. 4th period and 15th group में प्रेजेंट है। तो क्या ऑप्शंस हैं X के बारे में? It is written that partially filled d orbital and completely filled s orbitals are there, or completely filled s and completely filled p, completely filled s, half filled p and half filled d and completely filled s। तो इस तरीके से जो सिचुएशन है 15th ग्रुप के मेंबर्स हम देखते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट। ये हमारा नाइट्रोजन फैमिली, और ये आपके पास है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। दिस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, और ये 4th पीरियड एंड सो ऑन 5th and 6th, राइट। तो सबसे प्रॉपर एलिमेंट हमें जो दिया है वो आर्सेनिक है। आपको क्वेश्चन ने क्लियर बताया था 4th पीरियड एंड 15th ग्रुप मींस दिस एलिमेंट इज आर्सेनिक। अब नाइट्रोजन ग्रुप का तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3, है ना। तो नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3, फॉस्फोरस के लिए 3s2 3p3 एंड आर्सेनिक के लिए 4s2 4p3। कैन आई से आर्सेनिक विल हैव हाफ फिल्ड p सब शेल। ये देख लो p सब शेल में 6 आते हैं पर यहाँ पे 3 ही आए हैं,
तो P is half and S is full S completely filled and half filled is P, तो आंसर बन रहा है C ऑप्शन। D के अंदर इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड नहीं हो रहा है, यहां आपका आंसर C ऑप्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 19। The correct order of increasing electron affinity of halogens, 4 halogens हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कीप इन माइंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डेल्टा HEG लिखते हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन का है। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू भी क्लोरीन की याद हो जाए तो अच्छा रहता है। क्लोरीन हैज 349 किलो जूल पर मोल, बट फ्लोरीन का हाईएस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से फ्लोरीन का वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है कम हो जाता है। फ्लोरीन में छोटा साइज होता है, फ्लोरीन इज 2p5 जबकि क्लोरीन है 3p5, 3p इज बिगर इन साइज, देयरफॉर इट विल गेन इलेक्ट्रॉन इजिली। बट फ्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शंस हो जाएंगी, तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू कम होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोरीन का है 328 किलो जूल पर मोल, और नेगेटिव साइन लगा देते हैं ये शो करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्लोरीन टॉप पे, फिर फ्लोरीन होना चाहिए टॉप पे बट टॉप पे क्लोरीन है, और फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। 4 हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट क्लोरीन की है, दैट इज द एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन। The first ionization potential of sodium is given. The value of electron gain enthalpy of Na plus will be. You are given ionization potential मतलब एक इलेक्ट्रॉन का हम लॉस दिखाएंगे। आयोनाइजेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम Na प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 5.1 है। अब बोला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस आयोन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Na बनेगा। तो दोनों रिएक्शंस को देखो, कैन आई से द सेकेंड वन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन। सो सेकेंड के लिए वैल्यू नेगेटिव कर देंगे, ऑपोजिट वैल्यू कर दो, जस्ट एक नेगेटिव साइन लगा दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा HEG कहते हैं। डेल्टा HEG ऑफ Na प्लस इज इनवर्स ऑफ ionization energy of sodium. Therefore, for Na plus gaining 1 electron and becoming sodium atom, the value will be equal to minus 5.1 electron volt. Minus 5.1 means C option is your answer. Coming to the next now, question number 21. The electron affinity value of A, B, C, D are given. And outer electronic configuration of B will be, किस एलिमेंट की बतानी है हमें? B एलिमेंट की। ये वैल्यू है B की, A, B, C, D सबकी वैल्यूज दी थी, रिस्पेक्टिवली भी लिखा है, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू है ना -60, 135, 60, 200, 348 ये वैल्यूज दी हैं। सो कैन आई से आउट ऑफ द 4 वैल्यूज -60 इज द लीस्ट वैल्यू। This is the least value out of the given values. तो ये सबसे कम वैल्यू है। It means that ये एटम सारी कॉन्फ़िगरेशंस में ये एटम नाइट्रोजन बनता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन का। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ क्लोरीन। कॉन्फ़िगरेशन देखने से हमें पता चला ये है क्लोरीन, क्लोरीन के पीछे वाला सल्फर है, ये फास्फोरस है और ये सिलिकॉन। 3s2 3p2 बना सिलिकॉन। तो ये एलिमेंट बी होगा। बी एलिमेंट इज 3s2 3p3, बी नहीं सी में लिखा है ना 3s2 3p3। सो दिस इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड वाला ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है, तो अगर ये गेन करेगा भी तो बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी लीस्ट आएगी। आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन सी, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट
HI1 and HF2. You are given ionization enthalpies are given and electron gain enthalpy भी given है. ये है ionization enthalpies, ये लास्ट कॉलम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 एलिमेंट्स के लिए हमें वैल्यूज दी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, सेकंड का और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का. द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ये ढूंढना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार आता है. मोस्ट रिएक्टिव मेटल से साफ साफ पता चलता है कि मेटल जो है इट लूजेस इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजिली. जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी को तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल बोलेंगे ना. देयरफॉर इट हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे देखो तो 419 419 वैल्यू है एक की. एंड दीज वैल्यूज आर इन किलो जूल पर मोल रिटन हेयर. किलो जूल पर मोल में 419 जो वैल्यू है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगी. उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. लीस्ट रिएक्टिव, इसका क्या मतलब है? नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना होता, उसने गेन करना होता है. लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल मीन्स इट डज नॉट गेन इजिली. जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फिर तो अच्छा नॉन मेटल है. यहां पे लीस्ट रिएक्टिव पूछा जा रहा है. लीस्ट रिएक्टिव का मतलब इट विल नॉट गेन इजिली, राइट. तो आपके पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जो गेन ना करे? गेन ना करे मतलब इट हैज पॉजिटिव डेल्टा HEG. डेल्टा HEG नेगेटिव होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. पॉजिटिव का मतलब जल्दी से गेन नहीं कर रहा है. सो 419 था मेटल के लिए. नॉन मेटल के लिए ये एक पॉजिटिव वैल्यू है +48. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमारा लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल का आंसर आ रहा है 5 और मोस्ट रिएक्टिव का आंसर आ रहा है 2. 2 एंड 5 आपका आंसर ऑप्शन सी. और याद रखने की बात क्या है? अच्छा मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे और अच्छा नॉन मेटल वो है जो गेन करे. हमें क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना था लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. तो हमने लिख दिया लीस्ट रिएक्टिव मीन्स इट विल नॉट गेन इजिली. नॉट गेन मीन्स एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 23. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ इज गिवन. He+ का आयोनाइजेशन एनर्जी है 19.6 इंटू 10⁻⁻18 and energy of first stationary state of Li+2 will be, this is in joules. तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी He+ का दिया है और आयोनाइजेशन एनर्जी Li+2 का हमें पता करना है. तो हम क्या करेंगे? पहले हम हाइड्रोजन का निकालेंगे. IE of He+ is equal to IE of हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय Z². ठीक है, तो ये है 19.6 इंटू 10⁻⁻18 और हम इसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब कि हाइड्रोजन की वैल्यू चाहिए अगर, तो आप डिवाइड कर दो विद 4. 19.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 4. ये मैंने हीलियम से हाइड्रोजन पे वैल्यू ले आए हम 4 से डिवाइड करके, बट अल्टीमेटली हमें किसका कैलकुलेट करना है? हमें तो Li+2 का कैलकुलेट करना है. कैन आई मेंशन हेयर IE ऑफ Li+2 will be for Li+2 I will write IE of hydrogen multiplied by what should I write? 3 square. क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन की वैल्यू अवेलेबल है 19.6 इंटू 10⁻⁻18 अवेलेबल है. 4 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया. आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर आंसर एज -4.41 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स. गॉट इट? तो ये आंसर बनेगा. चेक करेंगे, आंसर विल बी ऑप्शन सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आता है 24. द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज फॉर द एलिमेंट्स X आर गिवन.
find the number of valence electrons. What is given to you is the successive ionization energies, एक के बाद एक. पहला इलेक्ट्रॉन लॉस जब होगा 410 किलो जूल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. सेकंड के लॉस पे 820, थर्ड के टाइम पे 1100, फोर्थ के लिए 1500 और फिफ्थ के लिए 3200. तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम एक्स. कितने इलेक्ट्रॉन है इस एटम एक्स के अंदर. तो आप देखिए IE1 410, IE2 820, IE3 1100 and IE4 it is 1500, IE5 is 3200. all of them are in kilojoule per mole, right? तो हाईएस्ट जंप कहां पे है. हाईएस्ट जंप हमें दिख रहा है 4 के बाद 5 पे जाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी. इट मींस इस एलिमेंट के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में. हाईएस्ट जंप in ionization energy is from IE4 to IE5. 4 से लेके 5 तक हाईएस्ट जंप होता है. therefore this element contains 4 electrons. 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल के चारों इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएं और उसके बाद आप अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन ए. देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. लास्ट क्वेश्चन नाउ. Bi-Em is the IUPAC name of the element with Z. देखिए नील होता है 0 के लिए. IUPAC ने रिकमेंडेशन दिया अन इज फॉर 1, बाई इज फॉर 2, ट्राई इज फॉर 3 एंड लाइक दैट. जैसे जैसे आगे चलेंगे. अब हमें क्या दिया है. अन बाई ईएम. दिस इज गिवन टू अस. अन का मतलब है 1, फिर से अन है, फिर बाई है, मतलब ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 112. IUPAC रिकमेंडेशंस हैं फॉर एलिमेंट्स ग्रेटर देन Z greater than equal to 100. आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है. तो आंसर आता है बी ऑप्शन. अगर 102 का नाम चाहिए तो इट विल बी अन, फिर नील, फिर बाई, फिर ईएम. राइट. इन दिस मैनर आप IUPAC नेम्स दे सकते हो. तो आपका आंसर इस केस में बन रहा है ऑप्शन बी. गॉट इट. सो दैट इज ऑल अबाउट द लेक्चर. We have learned through these questions how electronic configuration is playing an important role for the sequence of atomic radius, for ionic radius and for ionization energy, for electron gain enthalpy, how electronegativity is to be arranged. 4 elements, 5 elements are given, how they can be arranged in terms of increasing order of electronegativity or decreasing order of electronegativity. For that there is a need to place the elements according to the periodic table. first of all, periodic table का meaning क्या है. the elements having similar properties are kept in similar groups. why they are kept in similar groups? because they have similar valence shell electronic configuration. तो configuration का बहुत बड़ा रोल है. जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिसाइड करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिसाइड करना है, तो न्यूक्लियर चार्ज को देखना है, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को देखना है. इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड इनटू S. इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम S सबशेल और P सबशेल और D सबशेल. उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब देखने के बाद सीक्वेंस डिसाइड होता है. आपने इन क्वेश्चंस के थ्रू ये सीखा है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग अप NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सेम चैप्टर, and that will be including these properties as well as the periodic table, how many groups, how many periods are there, what is the composition of the periodic table. all that you will be having single correct questions, more than one correct questions and matching type of questions. Be ready for that and keep practicing till we meet in the next video. Make sure you subscribe to the channel. Thank you and bye bye.